फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रीडिफाइंड जीके। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सोलर सिस्टम फुल कोर्स के पार्ट 1 में सोलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कवर किया था। अब नेक्स्ट हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम अपने प्लेनेट अर्थ को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्थ, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट, बिकॉज मोर देन 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. It is densest of all planets because its core is more compressed. The circumference of Earth is 40,232 km. Area of Earth is 510 million square kilometer. And the fifth one is its natural satellite is Moon. So Earth से related हमारे key points हैं. First one is ये है हमारा ब्लू प्लैनेट. सेकेंड वन इज इट इज डेंसेस्ट. थर्ड वन इज सरकमफ्रेंस. इसका हमारा सरकमफ्रेंस है 40,232 किलोमीटर. सरकमफ्रेंस को और हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परिधि. And the fourth one is area. Area is 510 million square kilometer. Fifth one is its natural satellite. इसकी नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून. अब नेक्स्ट हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं. तो इसमें हमारे जो फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट. इट इज द आउटर मोस्ट एंड द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, अबाउट 0 to 100 किलोमीटर थिक. ओके, फर्स्ट इज क्रस्ट. इट इज थिनेस्ट layer, 0 to 100 kilometer. The crust is made up of two layers. An upper light layer called Sial. Upper light layer called Sial. Why Sial? It is made up of silicate or aluminium. Silicate plus aluminium. And the second layer is lower density layer. It is known as SEMA. SEMA is silicate plus magnesium. The second layer is mantle. This layer extends up to depth of 2,900 kilometer. Okay, as you see in figure, is a depth of 2,900 kilometer. This is mantle. Second one is mantle. Up to 2,900 kilometer. And the third one is core. Beyond the depth of 2,900 kilometer lies the core of the earth. This is the core of the earth, beyond the depth of 2,900 kilometer. Third one is core. So beyond 2,900 kilometer up to 5,100 kilometer, as you see in the figure. This one is core.
core has two layers. The upper layer is liquid and the lower layer is solid. Okay. And this is all about internal structure of Earth. Now we will see the movement of Earth. It has two types of movements. First one is rotation and the second one is revolution. तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं रोटेशन की. Earth spins on its imaginary axis from west to east in 24 hours. हमारे जो अर्थ है वो अपने ही इमेजिनरी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और इसकी जो फुल रोटेशन होता है वो 1 डे का होता है, यानी कि 24 आवर्स. अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन की. इट इज अर्थ्स मोशन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन. इट टेक्स 365 डेज. ओके, जो हमारा रिवॉल्यूशन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में लगते हैं 365 डेज. एंड अर्थ रोटेशन रिजल्ट्स इन occurrence of day and night. Second one is change in direction of winds and oceanic current. Direction of winds and oceanic current. Third one is rise and fall of tides every day. Rise and fall of tides every day. चलिए अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन की. रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ रिजल्ट्स इन, फर्स्ट वन इज चेंज ऑफ सीजन्स. And the second one is variation in the lengths of days and night at different time of year. Variation in the length of day and night at different time of years. Okay, and the third one is shifting of wind belts. यहाँ पे रोटेशन में क्या है, यहाँ पे जो डे एंड नाइट है ना, यहाँ पे इसका वक्रेंस है, ओनली वक्रेंस. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका वेरिएशन है. ओके दोस्तों, नाउ वी विल डिस्कस द जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अर्थ. सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की. इट इज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. It is the angular distance measured from the center of Earth on the globe. The lines of longitude, the lines of longitude are drawn as a series of semicircles. The lines of longitude are drawn as a series of semicircles. These are the semicircles that extend from the north pole to the south pole. ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, और ये हमारा क्या है, साउथ पोल. ये हमारे नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल तक होती हैं सेमी सर्कुलर लाइंस, एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस. और दोस्तों, जो इस ग्लोब में सेंटर से राइट वाला पोर्शन है, हम इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो हमारे ग्लोब में सेंटर से लेफ्ट वाला पोर्शन है, हम उसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके, और अब बात करते हैं लैटिट्यूड की. दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर. ओके, जो हमारा ये इक्वेटर होता है हमारा 0 डिग्री. और जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को हम बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ. और जो हमारा साउथ पोल है, साउथ पोल को हम बोलते हैं 90 डिग्री साउथ. ओके, तो जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, दीज आर दी लाइंस, हमारी क्या है, पैरेलल है इक्वेटर के 0 डिग्री के.
ओके, तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? दीज आर द लाइंस, इन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। और जो हमारा इक्वेटर से जो ऊपर का पोर्शन है हम उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर से नीचे है हम उसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी कंप्लीट ड्राइंग है। जो ये हमारा क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर। ओके, ये हमारा क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। और उससे 23.5 डिग्री पे हमारी क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये हमारी कितनी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, और वैसे सेम हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हम पे कितना है? 23 डिग्री, ये हम पे कितना है? 23.5 डिग्री साउथ, और हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके दोस्तों, अब ये हमारा कितना है? 90 डिग्री नॉर्थ पोल जो है हमारा, और ये 90 डिग्री साउथ क्या है हमारे पास? साउथ पोल। ओके, अब बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लैटिट्यूडनल लाइंस कौन सी हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कौन सी हैं। तो हम इसको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। इसमें जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, लेटी, तो वो हमारी लेटी हुई हैं। यहाँ से वर्ड है लेटी, तो वो हमारी लेटी हुई हैं। दीज आर द लाइंस। ओके, और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, लॉन्गी यानी कि लंबी लाइंस, तो ये हमारी ऐसे ऐसे लंबी लाइंस हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इक्विनॉक्स एंड सोलेस्टाइस। सबसे पहले बात करते हैं इक्विनॉक्स की। दीज आर द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। ड्यूरिंग दीज डेज द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, जो हमारा सन है, जो उसकी रेज हैं डायरेक्टली फॉल हो रही हैं कहाँ पर? इक्वेटर पर, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी डायरेक्ट जो हमारी सन की रेज हैं वो कहाँ फॉल हो रही हैं? इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स, और ये हमारा होता है सितंबर 23, ठीक है। वैसे सिमिलरली यहाँ पर ये हमारा क्या है? वर्नल इक्विनॉक्स। तो अगर हम इसकी डेट बोले तो ये हमारा होता है 21 ऑफ मार्च। यहाँ पर हमारी जो सन की रेज हैं वो हमारी डायरेक्टली फॉल करती हैं कहाँ पर? इक्वेटर पे। ओके, अब हम बात करते हैं सोलेस्टाइस की। The time of the year when the difference between the length of days and the length of the night is the largest. During these days the sun shines directly over the tropics. Okay, जैसे आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, जो हमारा सोलेस्टाइस है ये हमारा कौन सा है? विंटर सोलेस्टाइस। यहाँ पे जो हमारी सन की रेज डायरेक्टली फॉल हो रही है कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। वैसे सिमिलरली यहाँ पर क्या है? हमारा समर सोलेस्टाइस। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? जो हमारी सन की रेज डायरेक्टली फॉल हो रही है कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो जो हमारा समर सोलेस्टाइस वो हमारा होता है 21 जून को, और 21 जून। ओके, और जो हमारा विंटर सोलेस्टाइस है वो हमारा होता है 22 ऑफ दिसंबर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जो हमारा समर सोलेस्टाइस है यहाँ हमारा सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। यहाँ पे वेरिएशन सबसे लार्जेस्ट होता है। यहाँ पर हमारा विंटर्स में क्या होता है? यहाँ पर सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है, जो कि हमारा 22 दिसंबर को होता है। ओके, लेट्स मेक इट शॉर्ट। हाँ, मार्च 21 हमारा होता है वर्नल इक्विनॉक्स। ये इक्विनॉक्स से हमारा मतलब क्या है? इक्विनॉक्स मीन्स हमारी जो सन की रेज है वो इक्वेटर पे पड़ रही है। जो हमारा इक्यू वर्ड है वो हमारा इक्वेटर से आया है, इक्वेटर इक्विनॉक्स। ओके, और इसमें हमारा सितंबर 23 ये हमारा होता है ऑटोमनल इक्विनॉक्स। ओके, अब हम बात करते हैं
सोलस्टाइस की। सोलस्टाइस से हमारा मतलब क्या है? सोलस्टाइस से मतलब है कि हमारी जो सन की रेज हैं वो हमारे ट्रॉपिक से पड़ रही हैं, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कब पड़ेगी? जब समर में यानी कि जून में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में कब पड़ेगी? विंटर्स में। ओके, तो वो जो हमारा समर है होता है हमारा 21 जून, जून 21। ओके, इसको हम बोलते हैं समर सोलस्टाइस। सिमिलरली दिसंबर 22 को बोलेंगे विंटर सोलस्टाइस। ओके, now we will discuss about the Earth's atmosphere. The atmosphere is a mixture of a layer of gases enveloping the Earth held to it by gravitational force. Okay, composition क्या है हमारे पास? composition of gases as you see in the figure. Nitrogen, first nitrogen is about 78% in the Earth's atmosphere, and second gas is oxygen. Oxygen हमारी approximate 21% है, and the third gas is argon. Argon is about 0.98%. Okay, and the last one is carbon dioxide. Carbon dioxide is about 0.04%. Okay. Carbon dioxide is important for absorption of heat. Okay. Carbon dioxide हमारी important क्यों है? For absorption of heat. Okay. Carbon dioxide is important for absorption of heat from the sun as well as from the earth. वो सन की तो हीट को भी एब्जॉर्ब करती ही है, और ऊपर से वो अर्थ की हीट को भी एब्जॉर्ब करती है. हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है. Now we will discuss about the layers of atmosphere. Our first layer is troposphere. Our first layer is troposphere. Layer nearest to Earth's surface thickness varies from 8 km at the poles to 16 km at the equator. All weather phenomena occurs here. जो भी हमारे वेदर फिनोमिना रहते हैं जैसे क्लाउड्स, थंडर स्टॉर्म्स, रेन, वो सब हमारे ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होते हैं. और उसके बाद क्या हमारा ट्रोपोपोज सेपरेट्स ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर इज विज सेकेंड लेयर. ठीक है. द की पॉइंट्स आर नियरेस्ट टू अर्थ surface. Second one is all weather phenomena occurs here. Third one is tropopause. Tropopause separates troposphere from stratosphere. Okay, so then what second layer is stratosphere. Okay, it provides ideal condition of flying large airplanes. Ideal condition for what? For large airplanes. Okay. Contains ozone 25 to 30 km from the Earth's surface. It contains ozone.
हमारा कितना होता है 25 to 30 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ surface. Okay. Reason being called ozonosphere. It absorbs the ultraviolet rays from the sun. This layer is comparatively high temperature due to the absorption of ultraviolet radiation from the sun. अब इसी लेयर में हमारी क्या होती है ओजोन लेयर. ओके, ओजोन लेयर की वजह से ही हम इसे क्या बोलते हैं ओजोनोस्फीयर. ओके, जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है. देन और थर्ड लेयर इज मेसोस्फीयर. थर्ड लेयर इज मेसोस्फीयर. ओके, अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर. अप टू height of 80 kilometer. Okay. In this temperature decreases with height and falls about -100 degree Celsius at 80 kilometer height. यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर डिक्रीजेस, और जब वो हमारा 80 किलोमीटर हाइट पे होता है अर्थ सरफेस से, तो वो हमारा कितना होता है -100 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ द फोर्थ इज लोनोस्फीयर. फोर्थ लेयर इज लोनोस्फीयर. इट एक्सटेंड अबाउट 500 to 600 किलोमीटर. एक्सटेंड्स about 500 to 600 kilometer. Okay, contains electrically charged particles, ions that reflect the radio waves back to the earth, thus making radio communication possible. ठीक है दोस्तों, it contains electrically charged ions. Contains electrically charged, that is ions. Okay, it protects from falling meteorites, at most of them burn out in this region. ठीक है, जो हमारे मेट्रॉइड्स होते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे मेट्रॉइड्स क्या होता है. ठीक है, तो हमारे जो मोस्ट ऑफ द मेट्रॉइड्स होते हैं जो कि ऊपर स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने की कोशिश करते हैं, वो मोस्टली ये लोनोस्फीयर में आके बर्न हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है. ठीक है, तो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फॉलिंग meteorites. Okay, and the fifth layer is exosphere. Here earth gravity is extremely weak. यहाँ पर आके हमारी अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है, बहुत वीक पड़ जाती है. Earth's gravity is extremely weak. Okay, the outer part is called the magnetosphere. जो हमारा एक्सोस्फीयर का जो आउटर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्फीयर. आउटर पार्ट is called magnetosphere. And now the sixth, this is not the layer of atmosphere, but we are discussing it, the hydrosphere. ठीक है, हाइड्रो से ही इसका मतलब होता है पानी से. ठीक है, hydrosphere is the name given to the mass of water. Hydrosphere is the name given to the mass of water that covers about 71% of the Earth's surface. About 71%. Okay. The average depth of ocean is about 4 kilometers. So हमारी average depth
ऑफ ओशियन इज, वो हमारी कितनी है, 4 किलोमीटर। ठीक है, ओशियन की हमारी एवरेज डेप्थ कितनी है, 4 किलोमीटर। सो नाउ लेट्स हैव सम शॉर्ट क्विज। और फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ इज। ऑप्शंस आर फ्लैट, सर्कल, स्फीयर, ओब्लेट, स्फेरॉइड। आंसर इज डी, ओब्लेट, स्फेरॉइड। और क्वेश्चन नंबर 2 इज द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज। ओके, then the radius of earth is 6400 kilometer. Answer option is B. और third question is earth rotates around its axis from, these are the options। हमारी जो अर्थ है वो रोटेट्स होती है कहाँ पे, वेस्ट टू ईस्ट। सो वेस्ट टू ईस्ट कहाँ है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, इट इज द आंसर। और फोर्थ क्वेश्चन इज what is the correct sequence of the layer of the earth as one moves from the surface to the interior, mantle, crust and core। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, क्रस्ट। तो पहले क्या आएगा, 2, फिर आता है मेंटल 1, फिर आता है कोर 3। सो आंसर ऑप्शन इज 3। ठीक है, देन और फिफ्थ क्वेश्चन। The longest circle which can be drawn on the earth's surface passes through। ठीक है, ऑप्शंस आर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो आंसर इज इक्वेटर। ओके, और सिक्स्थ क्वेश्चन इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 21st जून इज कॉल्ड एज। 21st जून हमारा क्या होता है, समर सोल्स्टाइस, जहां पर हमारी सन की रेस हमारी कहाँ पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो हमारा क्या होता है, समर सोल्स्टाइस। और सेवेंथ क्वेश्चन इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 22nd दिसंबर इज कॉल्ड। 22nd दिसंबर हमारा क्या होता है, विंटर सोल्स्टाइस। यहाँ पर हमारी जो सन की रेज हैं वो फॉल होती हैं डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो इसको हम बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस। Answer option is A. And our eighth question is day and night on earth is caused by। Answer options are rotation of earth on its axis, revolution of earth around sun, inclination of the earth axis, or both A and B। उसका आंसर क्या होगा, rotation of the earth on its axis। Option is A। Okay, so और ninth question is lithosphere is। Options are the outer portion of the earth, part of earth's upper mantle, the relatively dense rocks that form the oceanic current, or the relatively light rocks that form the continental crust। तो answer is the outer portion of the earth। Answer option is A। और 10th question, the longest day and the shortest night occurs on। longest day हमारा कब होता है और shortest night, ठीक है, किस दिन होती है। तो longest day हमारा कब होगा, समर सोल्स्टाइस में, यानी कि 21st of जून। आंसर ऑप्शन इज बी। ओके, और 11th क्वेश्चन इज अर्थ हैज डैश टाइप ऑफ मोशन। अर्थ के कितने मोशंस होते हैं, ऑप्शंस आर 2, 3, 5, 1। तो कितने होते हैं, 2, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। तो आंसर ऑप्शन इज ए। और 12th क्वेश्चन, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एंगल ऑफ डैश विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑप्शंस आर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 66 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 66 डिग्री। एंड 13th क्वेश्चन इज imaginary lines that runs from the north pole to the south pole are। ठीक है, जो हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे आती हैं लाइंस, वो कौन सी होती हैं। ऑप्शंस आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, टाइम जोन्स, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और पैरेलल्स। ठीक है, तो हमारी कौन सी होती हैं, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, तो आंसर ऑप्शन इज सी। एंड और 14th क्वेश्चन इज
इमेजिनरी लाइंस दैट सर्कल्स द अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर। तो पैरेलल टू द इक्वेटर कौन सी होती है? लैटिट्यूडनल लाइंस। तो कहाँ है हमारा? ऑप्शन इज सी, लैटिट्यूड लाइंस। ओके दोस्तों, अब हम सोलर सिस्टम के पार्ट 3 में बाकी सभी प्लैनेट्स का डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।